Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta, an MBA Finance and Chartered Accountant qualified and PhD holder Finance and Finance. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम आपको इनकम टैक्स के बारे में समझा रहे हैं। इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट टैक्सेशंस क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स के बारे में हम आपको फुल्ली डिस्कशन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हु इज़ रिगार्डेड द एसएसी। एसएसी कौन होते हैं? सेक्शन 27 हमें डील करता है। सेक्शन 27 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेक्शन 27 डील करता है हु इज़ रिगार्डेड एज एन एसएसी। एसएसी मीन्स होता है ए पर्सन एन इंडिविजुअल, अन हिंदू डिवाइडेड फैमिली, ए कंपनी, ए फॉर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेट या नॉट, ए लोकल अथॉरिटी, every artificial judicial person by whom any tax, any other sum of money, including interest and penalty, is payable under the Act, irrespectively of the fact whether any proceeding under the Act has been taken against him or not. Second category में आता है a person is in respect of whom any proceeding under the Act has been taken, whether or not he is liable for any tax, interest, penalty. Proceeding may be taken either for the assessment of the amount of his income, of the loss sustained by him, of the income, the loss of any other person in respect of means क्या होता है के संदर्भ में, whom is assessable, or of the amount of the refund due to him to such other person. थर्ड कैटेगरी में आता है एसएसी में every person who is deemed to be SSC. For instance, respectively SSC is deemed to be an SSC by virtue of section 106 clause 2. Fourth category में हमें every person who is deemed to be SSC is default under any provision of the Fact Act. For instance, under section 201 clause 1, any person who does not deduct tax at source, deducted tax at sources, after deducting fails to pay such tax is deemed to be SSC in default. Likewise, under section 280, if a person does not pay advance tax, then he shall be deemed to be SSC in default. कहने का मतलब है कि डिडक्टेड एट सोर्सेज, कनेक्ट वाइड TDS होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यह गवर्नमेंट का पार्ट्स होता है। जैसे हम कोई भी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या FD कराते हैं, उस पर हमको क्या चार्ज होता है? TDS चार्ज होता है, जिसको कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो अब उसके बाद सपोज डेट एनुअल टैक्स आता है। एनुअल टैक्स में क्या होता है? ये तो SSC का पार्ट हो गया। एनुअल टैक्स में होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एनुअल टैक्स ऑन इनकम। टैक्स रेट ऑफ असेसमेंट ईयर, टैक्स का जो रेट होता है वो असेसमेंट ईयर के अनुसार होता है। इनकम फॉर प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स द नेक्स्ट फ्लोइंग असेसमेंट ईयर एट द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर। दिस रूल्स इज हाउएवर सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। Rate fixed by Financial Act. Tax rate are fixed by Annual Financial Act, not by Income Tax Act. For instance, tax rate of the assessment year 2021 से 2022 are fixed by Financial Act 2050. If however on the first day of April assessment year, हमारा जो असेसमेंट ईयर जो चलेगा वो किस ईयर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस ईयर से असेसमेंट ईयर मानेगी? अप्रैल टू मार्च। मेरा क्या चलेगा असेसमेंट ईयर? अप्रैल टू मार्च। एक साल का हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है स्पैक्स असेसमेंट। दिस रूल्स हाउएवर सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। रेट फिक्स बाय फाइनेंशियल एक्ट। फाइनेंशियल एक्ट के अंतर्गत टैक्स रेट आर फिक्स्ड बाय एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, नॉट बाय
इनकम टैक्स है। द टैक्स रेट का एनुअल फाइनेंशियल द्वारा यदि रेट फिक्स हो रहा है तो इनकम टैक्स एक्ट द्वारा नहीं किया जाए। फॉर इंस्टेंस टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2050-60 are fixed by the financial act. If, however, on the first day of April the assessment year, the new finance bill has not been placed on the statute book, the provisions in force of preceding assessment year, provision proposed in finance bill before the parliament which is more beneficiary of SSC will apply until the new provision become effective. And for further discussion, टैक्स ऑन पर्सन। टैक्स ऑन पर्सन का मतलब हो गया टैक्स इन चार्ज ऑन एवरी पर्सन। टैक्स जो चार्ज होगा वो प्रत्येक व्यक्ति पर चार्ज होता है। एक रिक्शा वाला भी इनकम टैक्स रिटर्न दिखा सकता है, एक आम आदमी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। ये इनकम टैक्स रिटर्न दिखाने से ये फ़ायदा होता है कि आपका ब्लैक मनी वाइट मनी में शो होता है। आप अपने एसेट्स को अपने संपत्ति को आप माने वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपका ये पता चलता है कि हमारे पास टोटल कितने इनकम आए। इनकम जो होता है, इनकम टैक्स जो होता है वो टोटल इनकम पे चार्ज होता है। और द प्रोविजन ऑन अप्रैल ऑन ऑफ द असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल फॉर द कंप्यूटिंग इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। द टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स इज द लिव्ड ऑन द टोटल इनकम every SSC compute in accordance with the provision of the act। इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं, आपको बता रहे हैं व्हाट इज़ द रिगार्डिंग इनकम अंडर द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम के संदर्भ में क्या है। इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम के संदर्भ में क्या है। द डिफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम इन सेक्शन 224 इज इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव है और नॉट एग्जॉस्टिव है। देयरफॉर द टर्म इनकम नॉट ओनली इंक्लूड दोज थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन सेक्शन 224 बट also इंक्लूड सच थिंग्स विच द टर्म सिग्निफाई अकॉर्डिंग टू जनरल एंड नेचुरल मीनिंग। Before discussing the definition of income given in section 224 is imperative to know meaning income and generally understood meaning of income meaning of income generally understood का मतलब हो गया इनकम इज ए प्रोडिकल मॉनेटरी रिटर्न्स। इनकम क्या है? यह मॉनेटरी रिटर्न विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी, इट मे बी रेकरिंग नेचर। इनकम जो होता है वो मेरा क्या होता है, रेकरिंग नेचर का होना चाहिए, जो लगातार, रेकरिंग मीन्स डे टू डे नेचर। इट मे बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द ट्रू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वेल्थ विच कम्स टू पर्सन ड्यूरिंग द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आपका जो टाइम होना चाहिए वो फिक्स पीरियड होना चाहिए। Broad the principles which is clarity the concept of income. A study of income broad principle will be helpful for understanding the concept of income. Regular and definite source. Regular and definite source का मतलब है क्या? The terms income cannot a prodigal monetary returns coming in with some sort of regularity, expected regularity for definite source. Different form of income. इनकम के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? इनकम मे बी रिसीव इन कैश इन काइंड। व्हेन इनकम इज रिसीव इन काइंड्स इट्स वैल्यूएशन इज टू बी मेड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रिस्क्राइब इन द इनकम टैक्स रूल्स। हाउएवर देयर इज नो प्रिस्क्राइब रूल्स, वैल्यूएशन देयरफॉर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। रिसिप्ट वर्सेज एक्रूवल। रिसिप्ट मीन्स प्राप्त, एक्रूवल मीन्स क्या होता है, जो भविष्य में प्राप्त हो सकता है। एक्रूवल मीन्स इनकम एराइजेज आइदर ऑन रिसिप्ट बेसिस ऑन एक्रूवल बेसिस। इनकम जो मेरा एराइज होता है वो रिसीव बेसिस पे होता है और एक्रूवल बेसिस पे होता है। एक्रूवल बेसिस मीन्स क्या होता है, जो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं रेगुलर डिफाइंड सोर्स। इनकम कॉम्प्लीमेंट, इनकम डिफरेंट फ्रॉम से इनकम। इनकम मे बी रिसीव कैश इन काइंड। व्हेन इनकम इज रिसीव इन काइंड इट्स valuation to be made accounting according to rules prescribed income tax rules. However, there is no prescribed rules. Valuation thereof the made basic market value. ठीक है। उसके बाद आता है रिसिप्ट वर्सेज एक्रूवल। लीगल इनकम। लीगल इनकम का होता है इनकम टैक्स लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिनेशंस बिटवीन इनकम accrued arising from a legal source and income tainted with illegality.
dispute title. Income tax assessment cannot be held up postponed merely because of existence of dispute regarding the title of income. Relief of reimbursement of expense of treated income where the relief of reimbursement of expense is not treated as income. For instance, reimbursement actual traveling expense and imply not an income. Actual traveling expense जो होता है वो income के रूप में नहीं माना जाता. Avoid diversion of income by overriding title versus application of income. Any expenditure या investment after income is received is application of income. Income under the Income Tax Act, which is chargeable tax, is income before application of income. Any expenditure या investment out of such income is deductible only if it is permitted by provision under the Income Tax Act, income tax rules. Diversion of income is where the by any obligation income is diverted to some other person when the assessee on behalf of some other person receive income letter is diverted to such person is known as diversion of income and consequently is not chargeable tax. Surplus for mutual activity. A person cannot make taxable profit out of the transactions with himself. Income must therefore come from outside. A surplus arising a mutual concern cannot be regarded as income chargeable to tax. A body of individuals raising contributions to common funds for the mutual benefit of members cannot be said have the earned on income when it find to overcharge members of some portions contribution raised may safely be refundable. Temporary and permanent income क्या होता है? For the purpose of income tax, there is no distinction between temporary and permanent income. Even temporary income is taxable. जो मेरा temporary income होगा वो taxable के श्रेणी में आएगा. Income tax lump sum receipt में का मतलब होता है income whether receive in lump sum in installment. लम्प सम मीन्स हो गया जो इनकम मेरा एक मुश्त आ रहा है वो हो गया. इंस्टॉलमेंट मीन्स जो हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं इज या इनकम अर्न करते हैं इज लाइबल टू टैक्स. तो ये इंस्टॉलमेंट और लम्प सम दोनों ही ये टैक्स के लिए योग्य होगा. फॉर इंस्टेंस मीन्स एरियर्स मीन्स बकाया और बोनस जो हमारा होता है उस पर जो बकाया है वो भी लम्प सम रिसिप्ट में आएगा. रिसीव इन लम्प सम इन इनकम एंड टैक्सेबल और सैलरी से जो मेरा इनकम आ रहा है वो भी इनकम टैक्सेबल रूप में माना जाएगा. इनकम फॉर सैलरी, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फॉर अदर सोर्सेज, ये सब इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. उसके बाद टैक्स फ्री इनकम होते हैं. इफ़ ए पर्सन रिसीव टैक्स फ्री इनकम ऑन विच टैक्स इज पेड बाय द पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द रिसिपेंट. बिहाफ मीन्स के बदले, उसके बदले इट हैज़ बीन ग्रॉस ऑफ द इंक्लूजन इन द टोटल इनकम. फॉर इंस्टेंस एक्स पे ₹25,000 पर मंथ, वाई टैक्स फ्री सैलरी टैक्स 3,000 पर मंथ इन बॉन्ड बाई एक्स डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट. इन दिस केस द अमाउंट टैक्सेबल हैंड्स ऑफ वाई इज 28,000 पर मंथ. ठीक है. रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ धर्मादा ETC. रिसिप्ट ऑन अकाउंट धर्मादा Gosla Pustala is not income and therefore not liable to tax. इसका devaluation of currency. Currency means रुपया को हम कैसे devaluation करेंगे. If any assess receive extra money on account of devaluation of currency, it is taxable. जब हम करेंसी का devaluation करते हैं तो ये भी taxable के श्रेणी में आता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स के श्रेणी में आ जाता है. इनकम इंक्लूड लॉस. जब इनकम पे कोई लॉस होता है, इनकम इंक्लूड लॉस विच इनकम प्रॉफिट गेन रिप्रेजेंट प्लस इनकम लॉस रिप्रेजेंट माइनस इनकम. जब हम जो प्रॉफिट और गेन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकम को जोड़ देते हैं और लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको माइनस इनकम में से माइनस करते हैं. उसके बाद आता है एप्रोशिएशन. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एप्रोशिएशन ऑफ पेमेंट बिटवीन कैपिटल एंड इंटरेस्ट. कैपिटल मीन्स पूंजी और उसके ब्याज के बीच में जो पेमेंट होता है उसको क्या करते हैं, एप्रोशिएशन करना. वेयर इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन कैपिटल. जब हम कैपिटल पर कोई चीज़ बकाया, इंटरेस्ट बकाया कुछ सम मीन्स कुछ रुपए, द क्रेडिटर गेट्स एन ओपन पेमेंट फ्रॉम द डेटर.
क्रेडिटर्स मीन्स क्या हो गया, लेनदार, और डेटर क्या हो गया, देनदार। लेनदार यदि लेनदार को पेमेंट कर रहा इज एट लिबर्टी टू अप्रोप्रिएट द पेमेंट टूवर्ड्स द प्रिंसिपल इफ हाउएवर, इस प्रकार नाइदर द डेटर नॉर द क्रेडिटर मेक्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट has been between capital interest, the income tax department is entitled to treat the payment as applicable to the outstanding, means outstanding interest means adat शुद्ध अदत्त ब्याज, एंड एसएससी इज एन इनकम, या इनकम का एसएससी। ठीक है, जो एसएससी मीन्स क्या होता है, जो टैक्स के श्रेणी में आ जाता है, जो टैक्सेबल इनकम है वह एसएससी के श्रेणी में आता है। यदि एसएससी उसे कहते हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है, उसको हम एसएससी कहते हैं। सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस मीन्स कहता है दोबारा। It is the fundamental rules of law of taxation that unless otherwise expressly provided, the same income cannot be taxed twice. ठीक है, in should be real and notification. Real and notificational in income means हो गया real income and not notificational income. A person cannot make a profit by trading with himself out of transfer of funds assets for one pocket to another pocket. Similarly, income does not arise in transaction between head office, branch office, even goods and invoice at price higher the cost price. Likewise, income does not arise to time of revaluation of assets. Source of income need not exist in the assessment year. It not necessary that the source income should exist in the assessment year. Pin money received by wife for her dress, personal expense. A small saving made by a woman out of money received from the husband for meeting household expense not treated in her income. या इनकम के अंतर्गत में ये से ट्रीट नहीं कर सकते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे नहीं मानती है। अवार्ड रिसीव बाय ए स्पोर्ट्समैन, in the case of a sportsman who is the professional, the award received by him is in the nature of benefit exercise. He is the profession, therefore it is chargeable to tax. Revenue receipt and capital receipt. Revenue receipt versus capital receipt क्या होता है? Revenue receipt is taxable income unless it is expressly exempt under the act. रेवेन्यू इनकम क्या होता है? वो टैक्सेबल इनकम है जब तक वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, माने मुक्ति नहीं होता। एग्जेम्प्ट मीन्स कर मुक्त हो जाना अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत। ऑन द अदर हैंड्स ए कैपिटल रिसिप्ट इज जनरली एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स अनलेस एक्सप्रेसली टैक्सेबल। फॉर डिटेल डिस्कशन, इसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, सेक्शन अलग सेक्शन को डील करेगा। वॉलंटरी पेमेंट, वॉलंटरी मीन्स क्या होता है? तुरंत। वॉलंटरी मीन्स होता है अपनी स्वेच्छा से हम पेमेंट करते हैं, वॉलंटरी पेमेंट। इन सम केसेस ए सम ऑफ मनी रिसीव विदाउट द कंसिडरेशन इज चार्जेबल टू टैक्स। बिना कंसिडरेशंस के यदि कोई टैक्स चार्ज होता है, कुछ मनी चार्ज होता है, उसको क्या करते हैं? वॉलंटरी पेमेंट करते हैं। प्राइज ऑन विनिंग ए मोटर रैली, द प्राइज ऑन विनिंग ए मोटर रैली इज इनकम। माने कोई भी हम मोटर रैली से, कोई भी हम जीत से हम प्राइज लिए, वो भी इनकम के दायरे में आता है, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, in all cases in which a receipt of sought to tax as income, the burden lies upon the department to prove that within the taxing provision, where however a receipt in the nature of income, the burden proving that the not taxable because it falls within the exemption provided by the act lines upon the SCC. अब SCC आ गया, SCC के अंतर्गत आ गया क्योंकि यह SCC टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। अब आई एक्सटेंडेड मीनिंग ऑफ द इनकम अंडर सेक्शन 224 को हम डील करें। अंडर सेक्शन 224 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है द टर्म इनकम स्पेसिफिकली इंक्लूड द फ्लोइंग प्रॉफिट एंड गेंस। इनकम इंक्लूड प्रॉफिट एंड गेंस। फॉर इंस्टेंस, प्रॉफिट जनरेटेड बाय बिजनेसमैन इज टैक्सेबल इनकम। कोई भी बिजनेस यदि प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा। डिविडेंड, dividend income include dividend, for instance dividend declared paid by a company to shareholder is taxable income। shareholders के लिए जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। इन द हैंड्स ऑफ shareholders, जो shareholders के हाथ में
वो डिविडेंड मिला। हाउएवर इस प्रकार डिविडेंड नॉट बीइंग डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ई डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन सच डिविडेंड्स द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड विल हैव टू पे डिविडेंड टैक्स। अब आता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय ए ट्रस्ट इन द हैंड एंड ट्रस्ट इनकम इंक्लूड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय इट। उसके बाद आता है एनी बेनिफिट ऑफ प्रिक्विजिट ऑफ डायरेक्टर। प्रिक्विजिट मीन्स क्या होता है? सुविधा। कोई चीज़ हम प्रिक्विजिट करते हैं उसको हम सुविधा कहते हैं। एनी बेनिफिट और प्रिक्विजिट ऑफ डायरेक्टर ए नॉन मैनेटरी बेनिफिट ऑफ प्रिक्विजिट इज ट्रीटेड इनकम इन द हैंड ऑफ द फ्लोइंग्स if it is the given company's director whole time part time relative directors if it is given company personnel have substantial interest of company relative to such person relative of their purpose means of husband wife brother sister any lineal ascendant and descendant of the individual if the person beneficially owner of the 20% of equity share capital in company then such person none is person who has substantial interest in the company। यदि 20% यदि कंपनी हेल्ड कर रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो रहा है, तो यह सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंपनी मानी जाएगी। द ऑफर सेट रूल्स ऑफ द एप्लीकेबल सम पेड ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस मीन्स उत्तरदायित्व विच बट फॉर्म द सच पेमेंट वुड बी हैज बीन पेबल नॉट डायरेक्टर ऑफर सेट पर्सन की ओर ले जाना। अब आते हैं कैपिटल गेंस। इनकम सम केसेस में कैपिटल गेन अंडर द सेक्शन 45 रिलेटेड ट्रीटेड इज इनकम। कैपिटल गेन को भी इनकम टैक्स के दायरा में लाते हैं। इंश्योरेंस प्रॉफिट एनी इंश्योरेंस प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 ट्रीटेड एज इनकम। इंश्योरेंस से जो भी हम प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं वो धारा 44 में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे डील करता है। ब्रेकिंग इनकम हम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है इसको अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? एज पर सेक्शन 40 हमें डील करता है इनकम फॉर कंप्यूट अंडर फ्लोइंग हेड। ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक इस्टीमेट किया गया कि आपके पास इतना इनकम है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में क्या आएगा? इनकम फॉर सैलरी, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी से जो मेरा इनकम आया, फिर प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन। यदि हम कोई प्रोफेशनल कर रहे हैं, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, MBA है, या किसी कंपनी में हम ऑडिटर हैं, या किसी कंपनी के हम एम्प्लॉई है या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, वो सब प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस प्रोफेशनल इनकम में आएंगे। उसके बाद आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आ गया जैसे मैंने ज्वेलरी हो गया, आभूषण हो गया, ये सब कैपिटल गेन के पार्ट हो गया। इनकम फॉर अदर सोर्स का मतलब हो गया जैसे मान लें हम रास्ता में जा रहे हैं, रास्ता में हमको 50,000 रुपया मिल गया, तो 50,000 जो हमको मिला तो वो मेरा क्या होगा? इनकम फॉर अदर सोर्स हो गया। वो उस पर भी इनकम टैक्स चार्ज होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं भैया हमको इस पर भी इनकम टैक्स चाहिए। द एग्रीगेट इनकम अंडर दिस हैड टर्म्स ए ग्रॉस टोटल इनकम। इन अदर वर्ड ये इनकम फॉर अदर सोर्स तक यदि हम जो इनकम लेते हैं तो द एग्रीगेट इनकम टर्म ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। इन अदर वर्ड ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स टोटल इनकम कंप्यूटेड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एक्ट बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम टोटल सैलरी को जोड़ लेते हैं, वो ग्रॉस टोटल इनकम माने टोटल इनकम को जोड़ने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम उसमें हमको 80cc से 80U का जब डिडक्शन हो जाता है तो वो हमारा टैक्स लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? टैक्स लायबिलिटी। उस पर हमको इनकम टैक्स चार्ज होता है। इनकम टैक्स जो मेरा चार्ज होगा वो स्लैब रेट से चार्ज होता है। जैसे LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना %, SLTC इतना %, उसका एक परसेंटेज वैल्यू होता है, उस पर इनकम टैक्स स्लैब रेट से चार्ज होगा। और उसके बाद जो आपका वो टैक्स लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि उतना आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, उतना पेमेंट आपको टैक्सेशन डिपार्टमेंट को देना ही पड़ेगा। यदि आप 5 लाख तक एग्जैम्प्ट है इनकम टैक्स तो आपको 5 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। यदि उससे ज़्यादा होगा तो उस पर आपको टोटल इनकम पे उतना स्लैब रेट से टैक्स चार्ज हो जाएगा। एक्सपेंडिचर रिस्पेक्ट इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। Section 40 provide that deduction shall be made the respect expenditure incurred by assessee relation to in the part total the income under the heads। इस प्रकार हम इनकम टैक्स को हम चार्ज करते हैं। अब आता है डिफरेंस केसेस में क्या क्या होता है। जैसे नॉन रेसिडेंट इंगेज इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप्स, डिफरेंट केस में। तो डिविडेंड
डिक्लेयर नहीं हुआ उस सिचुएशन में। अब हम आपको व्हाट द टोटल इनकम हु इज ई कंप्यूटेड, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको हार्डकोर फाइनेंस के लिए इनकम टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप इनकम टैक्स रूल्स नहीं जानेंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ये टोटल इनकम पे लगता है। इनकम फॉर सैलरी, इनकम फॉर सैलरी में क्या क्या आते हैं? इनकम बाय वे ऑफ अलाउंस, महंगाई भत्ता, फिर इनकम बाय टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिक्विजिट, जैसे मान लें कि जो भी हमको सुविधा मिलता है, जैसे हमको हाउस रेंट अलाउंसेज मिला, तो हाउस रेंट अलाउंस जो मिला ये इनकम फॉर सैलरी का पार्ट है, तो इसको भी हम ग्रॉस सैलरी में, उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 60, अंडर सेक्शन 60 को आपको पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। उसमें हम क्या करते हैं? डिडक्शन करते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस, डिडक्शन क्या कहेंगे? इंटरटेनमेंट अलाउंस, उसका प्रोफेशनल टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इस पर इनकम फॉर सैलरी चार्ज कर दो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर डिबिटेड ऑफ क्या है, ये सब पॉइंट्स को आपको राउंडिंग ऑफ इनकम सेक्शन 228 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डील करता है। कंप्यूटर टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? अप्रैल टू मार्च। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो क्या चलता है? अप्रैल टू मार्च ही सेशन चलता है, और एक साल का ही हम इनकम टैक्स शो करते हैं। इंडिविजुअल भी दिखाते हैं, कंपनी भी क्या? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। उसी तरह इंडिविजुअल इनकम टैक्स चार्ज होता है, कंपनी अपना इनकम टैक्स चार्ज माने अपना दिखाती है। इस तरह से इनकम टैक्स क्या होता है? टोटल इनकम पे लगता है। इनकम फॉर सैलरी, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फॉर अदर सोर्स, इनकम फॉर कैपिटल गेन, टोटल मिलाकर हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। उसमें 80 CC से 80 D का डिडक्शन करते हैं, उसके बाद हमारा टैक्स लायबिलिटीज क्लियर होता है। मोटा मोटी आज हम आपको इनकम टैक्स के बारे में वीडियो एक ब्रीफ में बना दी है। इसका हम फुली डिस्कशन करेंगे, पूरे पॉइंट्स को जो CA फाइनल तक के और हार्डकोर फाइनेंस को भी यह सपोर्ट करेगा। आपको इनकम टैक्स जानने के लिए डे टू अपने लाइफ में भी आप इनकम टैक्स के बारे में जान सकते हैं। आप अपना इनकम टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे, आप उनका उसके बारे में जानकारी है तो आप बहुत सा अपना टैक्सेशन के बारे में अपना इविजन कर सकते हैं, टैक्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। टैक्स की चोरी होती है, टैक्स इविजन मीन्स क्या होता है? टैक्स की चोरी करना। तो ये सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक MBA फाइनेंस और एक CFA जो हार्डकोर फाइनेंस है, ये इनके बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ये फाइनेंस का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अगले वीडियो में हम आपको इनकम टैक्स के डीप स्टडी देंगे, डीप स्टडी के बारे में बताएंगे। और मर्केंटाइल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग मेथड के लिए। मर्केंटाइल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में, अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम हो, चाहे फॉरेन US बेस, चाहे वो साउथ हो, कोरियन हो, या कोई भी लैंग्वेज में अकाउंटिंग सिस्टम हो, उसके लिए मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम जानना बहुत ही ज़रूरी है। पूरा फाइनेंस जो डिपेंड करता है वो मर्केंटाइल पे ही डिपेंड करता है। और एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट, पूरे फाइनेंस में कहीं रोना है तो वो एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट। जिसको एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट आ गया, समझिए उसको फाइनेंस 100% आ गया। फाइनेंस में कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत ही एडजस्टमेंट है, बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें। इसलिए अगले वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड बताएंगे, मर्केंटाइल सिस्टम होता है क्या है, कैश सिस्टम होता क्या है, इनकम चार्ज क्या होते हैं, व्हाट इज एमलेगेमेशन। सेक्शन 2 IB में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सप्लेन किया। एमलेगेमेशन मीन्स क्या होता है? एमलेगेमेट हो जाना, एक कंपनी दूसरे कंपनी में विलय हो जाता है। उसके बाद असेसमेंट इन नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको। इंडिविजुअल क्या है, हिंदू डिवाइडेड फैमिली क्या है, कंपनी क्या है, फॉर्म क्या है, एक एसोसिएशन पर्सन, बॉडी इंडिविजुअल, इनकॉर्पोरेट क्या है, लोकल अथॉरिटी क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है, नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द प्रोसीडिंग कैटेगरी। एंड इंडिविजुअल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, पर्सन, कंपनी, फॉर्म्स, एसोसिएशन पर्सन, ये सभी को जानना पड़ेगा। बिना जाने आप हार्डकोर फाइनेंस के बारे में कल्पना भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको हार्डकोर फाइनेंस के बारे में अकाउंटिंग पे पूरा कमांड होना चाहिए। इनकम टैक्स पेपर पे पूरा कमांड होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये SEBI का होता है, सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया।
के अंतर्गत वो हार्ड कोर फाइनेंस का पार्ट होता है। उसके बाद आपको ऑडिटिंग चैप्टर पे कमांड होना चाहिए, बिजनेस कॉर्पोरेट लॉ पे पूरा कमांड होना चाहिए। जब तक आप ये सभी को मर्ज करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। कॉर्पोरेट लॉ क्या, अकाउंटिंग क्या, ये सब फाइनेंस का पार्ट है। ऑडिटिंग क्या, फाइनेंस का पार्ट है। इनकम टैक्स क्या, फाइनेंस का पार्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना नियम है कि भैया हम ये इनकम टैक्स है, हम इस अनुसार कैलकुलेट करें। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, लागत हम निर्धारित करते हैं। हर एक कंपनी अपने को लागत निर्धारित करते हैं कि इसके में हमको कितना कॉस्टिंग लगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों निकालते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, कंपनी को ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो इस बात को जानने के लिए, एक एक पॉइंट को जानने के लिए आपको हार्ड कोर फाइनेंस को पूरे पॉइंट्स को डीपली पढ़ना पड़ेगा। यदि एक पॉइंट भी यदि आप मिस कर गए तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि फाइनेंस जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे टफ पढ़ाई माना जाता है फाइनेंस का, पूरे वर्ल्ड में। इसलिए फाइनेंस को जानने के लिए आपको एक एक पॉइंट को डील करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। इक्विटी क्या है, डेप्ट क्या है, हाइब्रिड फाइनेंस क्या है। हाइब्रिड फाइनेंस पिछले वीडियो में बताए थे, डेप्ट एंड इक्विटी का मिश्रण है। डेप्ट क्या है, पानी है, इक्विटी क्या है, दूध है। एक एक पॉइंट को डील करना है। इसमें रेशियो एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, टैक्सेशन को पढ़ना के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग को जानना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होते क्या है उसके बारे में आपको पूरे डीप नॉलेज होना चाहिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में जानना होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें क्या बताता है कि हमारे जेबी में कितना पैसा आएगा। अकाउंटेंसी हमें क्या बताता है, अकाउंटेंसी हमें बताता है कि हमें जो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग वो स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है, छितराया होता है, उसको अरेंज करता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। कॉस्टिंग में क्या होता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस जो मेरा होता है वो एक्चुअल बेसिस पे होता है। और हार्ड कोर फाइनेंस का मतलब होता है कि हमको एनालिसिस करके बताना है कि भविष्य में कंपनी डूबेगी कि बचेगी। ये एनालिसिस पार्ट है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है। इसको जानने के लिए आपको एक एक पॉइंट कम से कम 20-20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सीए हो, एमबीए है, फाइनेंस हो, ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है एक एक पॉइंट को। फाइनेंस मेरा चैप्टर था एमबीए फाइनेंस, एमबीए, पीजीपीएम, पीजीसीएम फाइनेंस। इसे सीए का भी पढ़ाई किए, पूरा फाइनेंस, हार्ड कोर फाइनेंस का भी पढ़ाई किए। तो इसमें क्या हुआ कि इस पर पढ़ने से ये हुआ कि आपके एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी हो। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। आप कुछ भी कीजिए, नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, वकालत कीजिए, जो कीजिए, लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हर एक फील्ड का। विदाउट नॉलेज यू आर वेरी, बिना नॉलेज का कुछ नहीं। ठीक है, डेट्स ऑल। अगले वीडियो में हम इनकम टैक्स के बारे में पूरा डील करें।